संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी हुआ कि स्पीकर से विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मुलाकात की है और सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने की डिमांड की गई है। लोकसभा में क्या हो रहा है, सुनते हैं। Andhra Pradesh government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. I'd like to inform the House and the honourable member that the entire system of giving national recognition to centres of excellence is designed to bring more visibility to impactful, credible institutions. We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship issued guidelines with this regard in 2019. A total of 6 COEs have been recognized, given that status by the ministry. But apart from this, a total of 202 centers of excellence have been established with the help of our sector skill councils. The 36 sector skill councils, as you know, are the principal bodies where we involve industry. In fact, these organizations are led by industry, and they work in coordination under the ministry as well. So that out of the 202, because the Honourable MP asked me about Andhra Pradesh, a total of 8 centres of excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. Supplementary. Well, my constituency Anantapur receives sunlight all around the year, sir, and it is home to 2 major solar parks contributing 62% to the state's renewable. Distinguished professor is deeply committed to advancing the welfare of especially abled children, championing their rights and opportunities for a better future. She is the president of Special Olympics Bharat, and in May 2024, she was appointed as solar and 35 gigawatts of wind power over the next 5 years, sir. Given Anantapur's prominent role in renewable energy and its potential to drive the state ambitious targets, sir, I would like to ask the minister, is there any plan to establish a center of excellence? और देखिए, ये लोकसभा और राज्यसभा से कार्यवाही की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में इस वक्त काफी शोर शराबा और हंगामा हो रहा है और इसके बीच लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। तो सदन की कार्यवाही की ये तस्वीर। Honorable MPs asked me specifically about the green job sector. I'd like to inform him that out of the 36 sector councils, one of our councils relates specifically to the space of green jobs, and there is a lot of potential. For instance, the PM Surya Ghar Muft Bijli scheme is targeting 1 lakh jobs. Our ministry is working in coordination with the ministry and the scheme. Under PMKVY 4, we are targeting to create a large number of jobs under the scheme. The Green Hydrogen Mission targets 6 lakh jobs in the value chain, and 50,000 OJT training is also targeted by the mission. Likewise, our ministry is working in consonance with that scheme as well. Sir, our Green Sector Council. लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र में हंगामा ही हंगामा। ऐसे में सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिर काम कब होगा। लेकिन ऑपोजिशन का रुख 3 मुद्दों को लेकर इस वक्त आक्रामक नजर आ रहा है। एक तो अडानी का मुद्दा है और दूसरी तरफ अजमेर और संभल में धार्मिक स्थलों को लेकर जो नया विवाद शुरू हुआ है, उस पर चर्चा की डिमांड कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सांसद हैं उनकी तरफ से की गई। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। and the couple is blessed with 3 sons. तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। हंगामा आज भी जारी रहा। विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए
आखिरकार स्थगित करना पड़ा है। अडानी मुद्दे के साथ साथ अजमेर और संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे विपक्षी सांसद। जमकर हंगामा हुआ और आखिरकार सदन चल नहीं पाया, कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा दोपहर 12 बजे तक के लिए। राज्यसभा की कार्यवाही जारी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस बात के आसार थे, आशंका थी, हुआ एक बार फिर वही है। हंगामे की वजह से लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। ऑपोजिशन के सांसद हंगामा करते हुए हम उनकी आवाज ही सुन पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। लेकिन डिमांड्स थी क्या? किन मुद्दों पर चर्चा की मांग कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों की तरफ से आज की जा रही थी? देखिए, संसद का जो पिछला हफ्ता था वो पूरा वॉशआउट हो गया था अपोजिशन के हंगामे के चलते। आज उम्मीद थी कि आज जो विपक्ष जो है जो कामकाज उसमें भाग लेगा, लेकिन आज भी जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई विपक्ष के सांसद अपने स्थान पर खड़े हो गए और लगातार वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। कुछ सांसद थे वो संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग करे तो इसी में कुछ एक आवाजें मणिपुर को लेकर भी आ रही थी। तो ऐसे में आज भी लगातार जैसे हाउस शुरू हुआ लगातार हंगामा शुरू हो गया। तो ऐसे में जो कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा। हालांकि आज एक मांग और की थी कांग्रेस के नेताओं ने, उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की थी। उनका कहना है कि कम से कम लोकसभा में 2 दिन की चर्चा जो है संविधान पे कराई जाए। किस तरह से देश में संविधान खतरे में है और उनका तर्क ये था कि राज्यसभा में 2 दिन की चर्चा के लिए चेयरमैन तैयार हो गए। तो ऐसे में लोकसभा में इस बात को चर्चा कराई जाए। तो जाहिर तौर पर जैसे ही सदन शुरू हुआ तो अपोजिशन के सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर तमाम मुद्दे वही मुद्दे हैं जो पिछले हफ्ते इन्होंने उठाए। कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष का रुख हमलावर नजर आ रहा है। संभल, अजमेर और अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही थी, हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही को फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए।